یہ ریکارڈ ہوگا ہمارے خاندان میں نہ کوئی ملٹن بنا ہے نہ کوئی اخوانی بنا ہے، ہم ہندوستانی تھے۔ ڈاکٹر صاحب اگر کشمیر ویلی کی بات کریں، بے روزگاری کا جال دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، کیا کبھی آپ نے یہ بات بڑے ایوانوں میں چھیڑی؟ یوتھ، بے روزگار یوتھ ایم اے بی اے ایم اے ایم ایس سی کر کے بیٹھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بے روزگاری ہے، پیک پہ ہے، یہ پرانی سرکاروں کی دین ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر ہم ڈسٹرکٹ بڈگام کی بات کریں، لوگوں کی کافی امید ہے آپ سے وابستہ ہے، کس طرح کی ڈیولپمنٹ آپ نے ڈسٹرکٹ بڈگام میں کی اور آگے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے ضلع کے لیے؟ طارق صاحب 25 بیڈ والا ہاسپٹل بھی ہے، اس میں ہمارے جتنے بھی روڈز یہاں ہے بڈگام ایریا میں، چاہے وہ بڈگام بیروا ہو، چاہے وہ بڈگام خان صاحب ہو، چاہے وہ بڈگام چار شریف ہو، اور جو اندرونی لنک روڈز ہیں ان کو میگنیمائز کروانا، یہ تو ہماری سرکار نے۔ ڈاکٹر صاحب اکثر بیشتر یہ دیکھا گیا ہے، جو بھی سیاست میں آتا ہے اکثر بیشتر لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جو اپنی عیاشی کے لیے آتے ہیں، آپ کا کیا ویژن اور مقصد کیا میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کب لوگوں کی خدمت کریں، ہم کب لوگوں کے ساتھ چلیں، ہم کب لوگوں کے ساتھ چلائیں، یہ ہمارا موٹیو تھا۔ ڈاکٹر صاحب اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ آپ فائز رہے، کس طرح کے کاریہ آپ نے اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے کیے؟ میرا کام یہ ہے دن بھر لوگوں کی خدمت کرنا، اپنے ملک کی خدمت کرنا، اور جو ہماری پالیسیاں ہیں گورنمنٹ کی اور سے وہ لوگ تک ڈاکٹر پہنچانا۔ صاحب آنے والے انتخابات میں اگر آپ کو موقع ملے، جس طرح سے لوگ آپ کو چاہتے ہیں، اگر آپ کو نمائندگی کرنے کا موقع ملا تو ڈسٹرکٹ بڈگام کے لیے کیا کچھ خاص کیا جائے گا؟ تو بڈگام ایسا سندر ہونا چاہیے کہ لگنا چاہیے یار بڈگام میں واقعی بڈگام ایک ہب ہے۔ دنیا بھر سے پروگرام شخصیات دیکھنے والے سبھی ناظرین کو میرا پیار بھرا سلام۔ آج جس مایناز شخصیت کو ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے وہ کسی تعارف یا تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں بی جے پی کے سینئر اور شہرت یافتہ لیڈر ڈاکٹر علی محمد میر صاحب کی، جو بڈگام کے خوبصورت گاؤں جسے کولبگ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج ہم نے مناسب سمجھا ڈاکٹر صاحب کی حالات زندگی پہ بات کریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام جس کا نام شخصیت ہے۔ ہم آپ کے حالات زندگی پہ بات کریں گے۔ آج ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آپ کی ابتدائی تعلیم اور آپ کی پرورش کہاں پہ ہوئی؟ آپ نے اچھا سوال کیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میری ابتدائی تعلیم کولبگ پرائمری اسکول میں شروع ہوئی، اس کے بعد ہائی اسکول واگر میں، آج وہ ہائر سیکنڈری ہے، وہاں میری تعلیم میں نے میٹرک ہائی اسکول واگر سے کیا ہے۔ جی۔ اس کے بعد ہائر سیکنڈری خان صاحب میں 1 سال میں نے وہاں تعلیم حاصل، اس کے بعد بڈگام ہائر سیکنڈری میں۔ میرا پرورش میں ایک ذمہ دار گھر سے ہوں، میڈیم فیملی سے ہوں، لیکن بڑا ذمہ دار میرا باپ اور میرا دادا پردہ وہ بڑے ذمہ دار تھے۔ یہ پوری مطلب علاج کو پتہ ہے کہ میرا جو دادا تھا وہ نیشنل کانفرنس کا ایک بانی تھا، شیخر کے ساتھ اس نے بڑی کام کی ہے۔ چلتے چلتے جب میں نے پھر ایڈمیشن لیا ہے پالیٹیک کالج میں سول انجینئرنگ میں، 1 سال میں نے وہاں کیا، اس کے بعد میں نے وہاں چھوڑ دی۔ اس کے بعد میرا ایڈمیشن ہو گیا پیتھالوجی میں، سوریا انسٹیٹیوٹ سے میں نے پیتھالوجی کا ڈپلوما کیا، اور وہاں پہ میں نے 3 سال 3.5 سال سروس بھی کی۔ جی۔ 94 میں نے وہاں الوداع کیا اس کا اور آ گیا واپس۔ اس کے بعد میں نے انڈسٹریل ایریا مطلب کے ساتھ تھوڑا سا کیا ہے، فیکٹری کے ساتھ، تو پھر ہم نے ایک تاج فیڈ بنائی ہے، ایک فیکٹری کیٹل فیڈز، تاج کیٹل فیڈز۔ تاج کیٹل فیڈز ہم 2 دوست تھے، ایک شوکت شاہ جی اور میں، ہم دونوں اس کو چلاتے تھے۔ وہ بھی 1 1.5 سال مطلب ایسے ہی رہا 95 تک۔ اس دوران میں نے سوچا میں پولیس میں نوکری کروں، تو میں چلا گیا تھا دلی، بی ایس ایف میں کچھ پوسٹ نکلی تو میں دلی چلا گیا تھا۔ میں نے وہاں اپروچ کیا، جی۔ ڈی جے رمن تھا اس وقت، تو اس کے اوپر راج پائلٹ کی اور سے، تو ہم نے سوچا ہم پہلے جائیں گے جامعہ مسجد، وہاں نماز پڑھی، اس کے بعد جائیں گے رمن کے پاس۔ جب ہم جامعہ مسجد جا کے گئے تو جامعہ مسجد پہنچنے سے کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد، وہاں سکندر بخت آئے ہیں، اور نیشنل وائس پریزیڈنٹ تھا بی جے پی کا۔ ہم نے سنا ہے کہ سکندر بخت آئے یہاں، تو میرا ایک دوست ساتھ تھا جس نے مجھے وہاں لیا ہے۔
हमें सिर्फ भेजे सिकंदर, उसने बोला भैया कश्मीरी लोग आए यार, उनको छोड़ो यार, तो उससे चाय शाय वहीं लाई मस्जिद में। तो बड़ा मतलब मैं बड़ा प्रतुर हो गया उस वक्त कि मैं क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसा एटीट्यूड और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा लीडर। बिल्कुल। क्योंकि जो लोग बोलते थे भाई ये जनसंघ है, वो लोग इसकी बात है, वो एरोगन है, वो है, तो वो मैंने टोटली नहीं देखी, वहाँ एरोगेंस देखी और मैं वहाँ उनका एटीट्यूड देख कर मैं बड़ा हैरान मुतासिर हो गया। तो उसे मतलब उस वक्त तो फोन शोन नहीं थे, तो उसने लैंडलाइन का नंबर दिया था, शायद 444 कुछ नंबर था उसका। हम नीचे आ गए, हमने खाना खाया, तो मैंने बोला नहीं यार चलो श्रीनगर वापस। हाँ वापस मुड़ के आ गए, हम नहीं गए रमन के पास जी। उसी प्रकार से थोड़ा सा यहाँ इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गई नए सिरे से। तो ये कौन सा दौर था? ये 95 था जी। 95 में यहाँ इलेक्शन का दौर स्टार्ट हो गया, इखवान स्टार्ट हो गया। तो इखवान ने जब जन्म लिया तो उसके साथ साथ तो उसी प्रकार में चला गया था। मुझे एक प्रश्न उठा, मैं यहाँ नेशनल पीस काउंसिल चला रहा था जी। सामाजिक ढाई था, मैं सोशल वर्कर था। मतलब उस मैं ऐसा सोचने लगता मैं मेरे गाड़ी में कोई सिगरेट नहीं पीता था, मेरे गाड़ी में कोई भी लेडीज खड़ा नहीं रहती, या आप मतलब किसी को भी बोल सकती है। इस वक्त भी मेरे एरिया में मेरे सामने कोई सिगरेट नहीं पिएगा, ना मेरे गांव में पिएगा। मैंने एक ही मतलब सिस्टम एक बनाया था उस वक्त। तो मैं चला गया था प्रेस नोट लेके कहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी टारगेट था हिज़्बुल मुजाहिदीन के नाज़ों में, मैं टारगेट था। मेरा पहला हिट ट्राई 92 में, क्योंकि 92 में मैंने 91 में जगमोहन को यहाँ लाया। तो जगमोहन को जो मेरे यहाँ लाया उसे उस वक्त 20 लाख रुपए दी, मैं उसके साथ नहीं आया था, लेकिन वो एक्सप्रेस हो गया। फिर मुझे हिटनेस निकला है 92 में, तो एचएम ने वो तो मेरे लोगों की नज़रों में बड़ा ये बन गया कि भाई ये शायद आर्मी का बंदा है या आईबी का बंदा है, तो इसलिए चलते। तो जब मैं वहाँ गया खदमत प्लस में, वहाँ से मैं वापस निकला तो मुझे मीटर ने बाहर उठाया बाइक से, बाइक पे लिया है, मुझे बाइक साथ थी। तो उनने मुझे लिया बरबरशाह पंडित मकानों में, उनका वहाँ शायद हेड आउट था, तो मुझे वहाँ लिया। वहाँ मुझे टार्चर हो गया, मुझे शोल्डर भी निकाला गया और ये एल्बो भी निकाला गया। तो उन्हें मुझे बाहर फेंका है। बाहर फेंकने के बाद मतलब मैं टोटली अनकॉन्शियस था, मुझे पता नहीं था। तो दुकानदार ने शायद मुझे देखा होगा, तो उन्हें मुझे लिया बरजुला हॉस्पिटल। बरजुला हॉस्पिटल में उन दिनों डॉक्टर सेठी था। डॉक्टर सेठी मुझे जानता था, उसने बोला भाई इसको यार जल्दी करो, उसको यहाँ मत रखो। मुझे प्लास्टर हो गया, तो मुझे निकाला और मैं चला गया ऑटो में घर। जब मैं घर पहुंचा तो घर वाले ने बोला भैया आपकी बाइक कहाँ है? मैंने बोला एक्सीडेंट हो गया है, बाइक टूट गई, तो वो मैंने मिस्त्री के पास छोड़ा। तो चलते चलते बीच में 2 महीने हो गए, मैंने एफआईआर नहीं काटा है बाइक का, तो उन्होंने बाइक ली है। 2 महीने के बाद टास्क फोर्स ने मेरी बाइक पकड़ी है बीरवा में कहीं। उन दिनों यहाँ डीके सलाहिया था डीएसपी ऑपरेशन, और विनोद गुप्ता था इंस्पेक्टर, और कुलदीप था इंस्पेक्टर। तो मैं घर आ गया। जब मैं घर पहुंचे, घर में बोले भैया आपको टास्क फोर्स वाले आए यहाँ, वो आपको ढूंढ रहे हैं। वो फालतू में थी गनी नेशन के घर में, वो एनसी का एमएलए था उस वक्त। जब मैं वहां गया तो उन्होंने मुझे वहां बोला आपकी बाइक कहाँ है? मैंने बोला बाइक भैया वो मिल्टन ने लिया है, मुझे टार्चर हो गया, अभी मुझे प्लास्टर ही है। तो उन्होंने बोला नहीं जी आपकी बाइक हमारे पास है। तो हमने फलानी जगह जब्त की, उस पर मिल्टन जो थी वो भाग गई। मैं परेशान हो गया। उन्हें मुझे गाड़ी में बिठाया और हुमामा लिया। हुमामा में जब मैं पहुंचा तो मैंने हुमामा में अपनी पूरी हिस्ट्री बोली, भैया क्या क्या मसला है। तो 12 सुबह सवेरे उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। अरशद बेदार उस वक्त आईजी थी। तो जब यहाँ स्टार्ट हो गए मैंने सोचा यार अब तो ये, मैंने क्या किया, मैं उठा और चला गया दिल्ली। तो दिल्ली में मैंने ज्वाइन किया सीधा सिकंदर भगत के पास 95 एंडिंग में बीजेपी। तब से लेके बीजेपी में है, मतलब मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा बड़गाम का, मैं कश्मीर सेक्रेटरी भी रहा हूँ, मैं कश्मीर प्रधान भी रहा हूँ, मैं स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, और मैं वीसी भी रहा हूँ जी अपनी सरकार में। तो तब से लेके आज तक 29 साल हो गए। 29 साल मेरे भाजपा में ही। डॉक्टर साहब इतने बड़े बड़े ओहदों पे आप फाइज रहे, किस तरह के कार्य आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए किए? देखो मेरा मोटिव था पहले नेशन, मैं पहले मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ, उसके बाद लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। बिल्कुल।
आप बखूबी वाकई आप मेरे पड़ोस में रहते हैं, तो मैंने वैसे आज तक किसी को अपने गेट से कभी नावरून नहीं किया है, जितना मुझसे हो सका है। चाहे वो डेवलपमेंट के आधार पर बात करें, चाहे वो हम रिक्रूटमेंट के बारे में बात करें, या किसी भी कोरम के बारे में, चाहे वो मतलब यहाँ जो जितने भी यहाँ बेवा औरतें हैं उनके बारे में बात करें, या जो यहाँ का यूथ है उनको कहीं कष्ट है तो उनके बारे में बात करें, या जो खेल कूद का कोई मतलब सिस्टम है उसके बारे में बात करें। मैंने कभी भी किसी को निराश नहीं किया है। जहाँ भी मुझे अपने लोग बोलते, खास अपने कास्ट के लोग बोलते, मैं वहाँ जाता हूँ, चाहे मुझसे मतलब कम हो या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं करता हूँ जितना मुझसे मेरी बस में होता था। तो मुझे लगता है कि जो आदमी एक पॉलिटिकल वर्कर बनना चाहे उसको पहले सोशल वर्कर बनना चाहिए। सोशल वर्क से ही पता चलता है मुझे क्या करना है, और वही गाइड करता है कि आपको कहाँ जाना है और आप क्या कर सकते हो, आप क्या करोगे। पहले हमें सोशल वर्कर बनना चाहिए, लोगों की खिदमत करना चाहिए। जरूरी नहीं है कोई पॉलिटिकल टाइज होना चाहिए। सही बात है। हाँ, पॉलिटिकल टाइज जरूरी नहीं है। अगर सोशल टाइज में इंसान काम करे, मुझे लगता है कि लोग खुद ब खुद उसको बोलेंगे आप आ जाओ, हम आपको एमएलए बनाएंगे या हम आपको एमएलसी बनाएंगे, लेकिन वो खुद सोशल वर्कर होना चाहिए। डॉक्टर साहब, अक्सर बेशतर ये देखा गया है, जो भी सियासत में आता है अक्सर बेशतर लोग ऐसे देखे गए हैं कि जो अपनी अयाशी के लिए आते हैं। आपका क्या विजन और मकसद था? देखो, भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता की भूखी नहीं है जी। जब हम भाजपा में मिले हैं, भाजपा के साथ जुड़े हैं, हम एक थॉट के साथ जुड़े हैं, हम एक मिशन के साथ जुड़े हैं, हम एक विजन के साथ जुड़े हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि हम कभी सत्ता में आए, हमारे दिमाग में था ही नहीं। जब हम 13 महीने के कार्यकाल में आए उस वक्त हम ऐसे थे, जब हम 13 महीने के कार्यकाल में आए हम ऐसे थे, जब हम 4.5 साल के कार्यकाल में आए, जो नेतृत्व मतलब अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, 13 महीने 13 दिन और 4.5 साल, हमने कभी नहीं सोचा कि फिर हम कभी सत्ता में आए। हालात उस प्रकार के बनाए हैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, यहाँ हमारे खिलाफ ऐसा गला खोदा उन्होंने कि हर कोई बोले भाई ये जनसीय लोग हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये मुसलमानों के खिलाफ लड़ते हैं, मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं मुसलमान। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि हम कभी सत्ता में आए। हाँ, हम ये सोच रहे कि हम कब लोगों के काम आए, हमारे हाथ कब लोगों के काम आए, हम कब लोगों की खिदमत करें, हम कब लोगों के साथ चलें, हम कब लोगों के साथ चलाएं। ये हमारा मोटिव था। हमें दिक्कत नहीं है सत्ता रहे या ना रहे। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति सत्ता का भूखा नहीं होना चाहिए। वो भूखा होना चाहिए लोग डेवलपमेंट का, वो भूखा होना चाहिए खिदमत का। हाँ, हम कब लोगों की खिदमत करें, हम लोग कब लोगों से उठे बैठे, हम कब लोगों की दिल जीते, वो उसका भूखा होना चाहिए। डॉक्टर साहब, चूंकि अभी हम आपके हालात जिंदगी पे बात कर रहे हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरा फैमिली बैकग्राउंड है कि मेरा बाप इतना पढ़ा लिखा नहीं था, वो एक जमींदार था। हम 3 भाई हैं, 2 भाई ने थोड़ा सा पढ़ा है, हम तीनों सेपरेट हैं, वो 2 भी सेपरेट हैं, मैं भी सेपरेट हूँ। जब मैं भाजपा में आया मुझे घर वालों ने निकाल दिया था उस वक्त, क्योंकि उनको पता लगा शायद इसने दीन चेंज किया, ये हिंदू बन गया था। 3 साल के बाद मेरा दादा आ गया मेरे पास, वो एनसी का बड़ा फैन था जी। तो वो आ गए 3 साल के बाद कि नहीं आप घर आ जाओ वापस, अलहदा बैठो लेकिन घर आ जाओ। फिर उसने मुझे यहाँ 5 मरले जमीन सुख दी थी। हमारे पास मतलब सैकड़ों कनाल जमीन थी, 5 मरले जमीन दी थी। तो फिर मैंने यहाँ मकान बना के दिया, तो फिर मैं बैठ गया। तो मेरी बीवी वो श्रीनगर से बिलोंग करती है, वो मैट्रिकुलेट है। मेरी माँ टोटली अनपढ़ है, लेकिन जहाँ मेरी परवरिश हो गई असली 6 के बाद एक औरत है हमारे एरिया में, उसके 2 बेटे हैं, मैं मुझे उनसे उठना बेटा था। वो उसका जो हस्बैंड था वो पुलिस अफसर था, तो उसके साथ मेरा उठना बैठना हुआ। तो जो वो औरत थी उसने मुझे कुरान भी सिखाया, और उसके असर से मैंने एक राह पकड़ी है। वो यही, उसका नाम गंडियारचंद है। गंडियार में वो औरत थी, वो भी जिंदा है, उसका हस्बैंड भी जिंदा है, और उसके 2 बेटे इंशाल्लाह माशाल्लाह वो भी जिंदा है। तो हम तीनों भाई इकट्ठे चलते थे। तो उस औरत से मैंने ये सीखा कि वो पढ़ी लिखी औरत थी। मुझे उससे एक चीज़ हुआ कि मैंने एक राह पकड़ी है। उस वक्त मैक्सिमम जवान मिलिट्री के साथ जाते थे, पार जाते थे, लेकिन मुझे अगर कंट्रोल किया गया तो उस औरत ने मुझे कंट्रोल किया। उसके बाद मेरी मतलब दादी और मेरे दादा जो है थे वो ज़बरदस्त नेशनलिस्ट थे, उन्होंने मुझे बड़ा कंट्रोल किया है पार जाने और मिलिट्री से उठने बैठने का। मैंने टोटली
गुरेज किया मिल्टन से हाथ मिलाने का। तो मैंने कि हमारे खानदान में ये रिकॉर्ड होगा, हमारे खानदान में न कोई मिल्टन बना है न कोई इखवानी बना है। हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहेंगे। डॉक्टर साहब, अभी जिस मकाम पे आप है, काफ़ी बिजी शेड्यूल है आपका, तो अपने फैमिली के लिए कैसे आप टाइम निकालते हैं? देखो, मेरे 3 बेटे हैं। एक बेटा ऑटोमोबाइल इंजीनियर करके ठेकेदारी करता है, दूसरा बेटा वो बीटेक करता है राजस्थान में, और बेटी ने बीएससी नर्सिंग किया है, और छोटा है उस मतलब वो भी 12th में पढ़ता है। शाम के टाइम मैं 1 घंटा फैमिली के साथ देता हूँ, 9 से लेकर 10 तक। सुबह में जब हम सुबह उठते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम, मैं 1 घंटा देता हूँ फैमिली के साथ। मैं सुबह 3:30 बजे उठता हूँ, तो 6 बजे मैं फिर सोता हूँ वापस, 6 साढ़े 6 बजे में फिर सोता हूँ। फिर मैं 8 बजे उठता हूँ। 8 बजे से लेके 9 बजे तक एक ही मतलब सिर्फ लोगों का काम और लोगों का सुनना, लोगों का मतलब अब मैं अभी आया, आपके सामने लोग यहाँ बैठे थे। मेरा काम यही है दिन भर लोगों की खिदमत करना, अपने मुल्क की खिदमत करना, और जो हमारी पॉलिसियाँ हैं गवर्नमेंट की ओर से वो लोगों तक पहुँचाना। इतना मैं बोलूँगा, क्योंकि पिछली बार जब इलेक्शन हुआ है, मेरी बेटी ने डीडीसी इलेक्शन में 1285 वोट लिए हैं भाजपा की संबल पे। मेरे बेटे ने इलेक्शन लड़ा है सरपंच का, उसने 3 पार्टी को हरवाया है, एमसी को भी हरवाया है, पीडीपी को भी हरवाया है और पीडीएफ को भी हरवाया है, और उसे उस वक्त 325, 225, 200 वोटों से उनको हरवाया और इलेक्शन जीता है, इलेक्टेड सरपंच बन गए हैं भाजपा के नाम पे। तो लोग मुझे चाहते हैं, मैं इतना बोलूँगा कि लोग मुझे चाहते हैं। लोगों को मतलब ये नहीं पार्टी क्या है, लेकिन वो बोलते हैं भैया व्यक्ति अच्छा है। इतना भी बोलूँगा, अपने एरिया के लोगों को मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि मैं घर पे बैठा हूँ, मैं कभी माइग्रेंट नहीं हुआ हूँ। एज अ भाजपा लीडर जितने भी हमारे लीडर हैं वो घर नहीं बैठे हैं, वो सारे माइग्रेंट हुए हैं। लेकिन मैं अपने एरिया को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, कि अपने लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरे साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि उन्होंने बोला आप क्यों बीजेपी चला दी हो। डॉक्टर साहब, अगर हम डिस्ट्रिक्ट बडगाम की बात करें, लोगों की काफ़ी उम्मीद है आपसे वाबस्ता है। किस तरह की डेवलपमेंट आपने डिस्ट्रिक्ट बडगाम में की, और आगे क्या कुछ करना चाहते हैं आप अपने ज़िले के लिए? तारिक साहब, आप भी बडगाम से बिलोंग करते हैं जी, आप बखूबी वाकई में बडगाम में आज से पहले 10 साल क्या डेवलपमेंट थी बिल्कुल, और आज क्या हो रहा है, आप बखूबी वाकिफ है। देखो, बडगाम में मैंने मतलब जो हमने प्रपोजल दिया था सरकार को, 70 मिनिस्टर आए हैं यहाँ, जो हमने उनको प्रपोजल दिया था उसमें 80% प्रपोजल पास हो गया है। चाहे वो रोड के बारे में बात करें, चाहे हम पीडीडी के बारे में बात करें, चाहे हम वो पीएच के बारे में बात करें, चाहे वो एजुकेशन के बारे में बात करें, चाहे वो हम हेल्थ के बारे में बात करें, 80% हमारा प्रपोजल पास हो के आया है। उसमें बडगाम का हॉस्टल 225 बेड वाला हॉस्टल भी है। उसमें हमारे जितने भी रोड्स यहाँ है बडगाम एरिया में, चाहे वो बडगाम बीरवा हो, चाहे वो बडगाम खान साहब हो, चाहे वो बडगाम चार शरीफ हो, और जो अंदरूनी लिंक रोड्स हैं उनको मैग्नेटाइज करवाना, ये तो हमारी सरकार ने किया है। तो पानी के बारे में बात करें कि इस वक्त 6 नए मतलब जो फिल्टर प्लांट बन रहे हैं पानी के, वो हमने मतलब लाए हैं सेंटर से, उन पे काम चल रहे हैं। घर घर जल, घर घर नल, वो हमने करवाया है। हर एक गांव में 15 गांव भी पेंडिंग है, अभी वो उसमें नहीं आए हैं। हर घर जल, हर घर नल, उसमें वो नए हैं जो जल शक्ति में। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वो 15 गाँव भी आएंगे। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा अभी कुछ करना है, ब्लॉक आधार पे में कुछ काम भी पेंडिंग जो हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम में करवाएंगे। भाजपा सरकार को हम फिर दोबारा विनती करेंगे वो ये 15 गाँवों को भी जल्दी में लाएं, और जो कुछ प्रोजेक्ट्स अभी पेंडिंग है वो प्रोजेक्ट्स में हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे काम करेंगे, और अपने डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट और एक डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट हम बनाएंगे। डॉक्टर साहब, अगर कश्मीर वैली की बात करें, बेरोजगारी का जाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्या कभी आपने ये बात बड़े ऐवानों में छेड़ी है? पहले मैं आपको, जो हमारा यूथ, बेरोजगार यूथ MA BA MA MSc करके बैठे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बेरोजगारी है, पीक पे है। ये पुरानी सरकारों की देन है। देखो, पुराने सरकारों ने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है उस वक्त। उनके पास 80 साल का बूढ़ा हो गया, स्लिप दे दी PhD में। उनके पास अनपढ़ कोई गया तो स्लिप दे दी RNB में। उस वक्त कोई क्राइटेरिया नहीं था, जो भी आता था, क्योंकि उन्होंने उस वक्त लूट का माल समझा था।
अपने मतलब जितने रिश्तेदार थे बेनिफिशियरीज थे उनको लगा वोटिंग पॉलिसी बनाई है, लेकिन इन्होंने नहीं सोचा क्या ये फाइनेंस में कहीं है, क्या कोई रिकमेंड पॉलिसी है इस बारे में, कोई पॉलिसी नहीं कि उन्हें ऐसी लगाए 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख लोग, उसका इम्पैक्ट आज पड़ गया। जो हमारा यूथ है उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ गया, क्योंकि जितने भी व्यक्ति जो मतलब आज 5 मिनट के लिए यहाँ निकल गया, एक लड़का निकल गया वो 8th पास है, मैट्रिक पास है, उसको प्रमोट किया गया, वो कहाँ जाएगा, उसने MA की सीट पकड़ी ना जी। तो इसका इम्पैक्ट इस यूथ पे पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आने वाले टाइम में हमने मतलब बहुत सारे ऐसा मतलब प्रोजेक्ट बनाए, जो प्राइवेट प्रोजेक्ट आएंगे, प्राइवेट प्रोजेक्ट है उनको जगह देंगे, रोजगार देंगे, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आने वाले इंतखाबात में अगर आपको मौका मिले, जिस तरह से लोग आपको चाहते हैं, अगर आपको नुमाइंदगी करने का मौका मिला तो डिस्ट्रिक्ट बडगाम के लिए क्या कुछ खास किया जाएगा? देखो, डिस्ट्रिक्ट बडगाम जो है, डिस्ट्रिक्ट बडगाम में मेन प्रॉब्लम है एक तो रोड की है, जो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे हम मिनी सेक्टर की बात करें, चाहे हम किसी भी चीज़ की बात करें, पहले हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करें, हमें पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि बडगाम डिस्ट्रिक्ट नज़दीक है श्रीनगर को। नंबर दो सबसे बड़े 2 डिपार्टमेंट जो बडगाम के साथ टच है, इंडियन मतलब नेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रेलवे, वो दोनों बडगाम में आते हैं। खुशकिस्मती है बडगाम की कि दोनों प्रोजेक्ट जो है वो बडगाम में है। तो बडगाम ऐसा सुंदर होना चाहिए कि लगना चाहिए नहीं यार बडगाम में, वाकई बडगाम एक हब है। देखो, अगर हम PHQ की बात करें वो भी बडगाम में आता है, एयरपोर्ट बडगाम में आता है, रेलवे बडगाम में आता है, जो भी कोई VVIP आता है तो वो तो बडगाम से गुजरता है। सही बात है। तो बडगाम लगना चाहिए कि नहीं यार बडगाम डिस्ट्रिक्ट वाकई डिस्ट्रिक्ट है। अगर खुदा ने चाहा तो, ऊपर वाले ने चाहा और आप लोग ने दुआ किया, अगर मैं किसी सतह पे आ गया, कहीं मैं एडजस्ट हो गया, ऊपर वाली कृपा जो पार्टी की मेहरबानी से, मैं पहला मेरा कदम उठाऊंगा डिस्ट्रिक्ट बडगाम के लिए, खासकर बडगाम टाउन के लिए। मुझे बडगाम टाउन सुंदरता लगना चाहिए, बडगाम टाउन की सुंदरता दिखनी चाहिए, बडगाम टाउन मुझे खूबसूरत लगना चाहिए। वहाँ की जो सड़क है, इन मतलब लिंक रोड्स है, या वहाँ का जो मार्केट है, वो हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बनाएं। डॉक्टर साहब, अगर हम अपनी नौजवान पौध की बात करें, गलत रास्ते इख्तियार कर रहे हैं, ड्रग्स के और ज़्यादा जा रहे हैं, कैसे हम उन बच्चों को वापस लाएंगे, सही ट्रैक पे लेके आएंगे? देखो तारिक साहब, नापाक मुल्क की नापाक खालिस्तानियाँ, नापाक मुल्क ने बहुत सारे मतलब ऐसे हरबे चलाए कश्मीर में, हम कैसे कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करें। तो वो उसने जवानों की थ्रू करवाया ना, वो तो फेल हो गए, मतलब उनने गुरिल्ला चलाया तो वो फेल हो गए गुरिल्ला में। आज वो सोच रहे हैं कि क्योंकि उनको गरज नहीं हमारे लोगों के साथ, उनको गरज नहीं हमारे डेवलपमेंट के साथ, उनका गरज था हमारा जो यहाँ का वातावरण, जो यहाँ का आबहवा, उनको गरज हम कैसे इस आबहवा को, उस जमीन को ले लें। लेकिन ऊपर वाली की कृपा यह है कि वो लोग टोटल फेल हो गए उस चीज से। अब वो चाहते हैं कि ये यहाँ का यूथ कैसे डिस्टर्ब हो जाए, और यहाँ की सरकार को वो चलने नहीं देंगे, हिंदुस्तान को वो यहाँ नकारेंगे, लेकिन उनको वो नापाक मुल्क को, नापाक इरादे हम कभी पनपने नहीं देंगे। अब क्या कुछ करने की जरूरत है ताकि हम अपने बच्चों को सही ट्रैक पे लाए? यहाँ डेवलपमेंट की जरूरत है और उन बच्चों को एकोमोडेट करने की जरूरत है, उन बच्चों को एक अच्छी दिशा देने की जरूरत है। वैसे शायद आप बखूबी वाकिफ है, जब मोदी जी ने तीसरी बार सरकार संभाली, उसे कड़वार के लिए बोला कि मुझे यहाँ के यूथ के लिए काम करना है, यहाँ के किसान के लिए काम करना है, और यहाँ के गरीब के लिए काम करना है। 3 चीज उसने कड़वार के लिए बोला कि मैं ये 5 साल सिर्फ इन 3 चीजों पे काम करूंगा। यहाँ का बेरोजगार यूथ और जो डिस्टर्ब यूथ है, डिस्टर्ब यूथ के लिए और बेरोजगार यूथ के लिए, और यहाँ के किसान के लिए, और यहाँ के गरीब परवर लोगों के लिए, ये 5 साल उन्हीं के लिए काम करेंगे। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगा कि मोदी जी क्या करता है। आते आते उसने जिम्मेदारों का एक मसला हल करके रखा है, आते आते ही उसे भी सत्ता नहीं संभाली थी, पहली फायर उसने वही की है। लगता है कि नहीं आने वाले टाइम में सारा वातावरण ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मसलन हर एक लड़का, हर एक जवान एकोमोडेट हो जाएगा, वो अपना रोजगार कमाएगा।
प्रोग्राम की नज़ाकत को देख के हम अपने मेहमान से यही रुखसत होते हैं। डॉक्टर साहब, आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया। थैंक यू।